نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آج ہم زبان کے مخرج کے ساتھ جب دانتوں کا استعمال ہوتا ہے تو پھر کون کون سے وہاں سے حروف نکلتے ہیں، کون سے وہاں سے الفابیٹس نکلتے ہیں، ان کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دانتوں کے نام یاد کر لیں۔ آپ کے سامنے نقشہ نظر آ رہا ہے دانتوں کا۔ دانت ہوتے ہیں ہمارے منہ میں اور داڑیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دانتوں میں ہمارے پاس ہوتے ہیں ثنایا، ہوتے ہیں رباعی، ہوتے ہیں انیاب، ہوتے ہیں۔ ثنایا بھی 4 ہی ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو ہیں وہ 2 ثنایا علیہ ہوتے ہیں اور 2 ثنایا سفلی ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے پاس 4 ہیں، لیکن ان میں سے جو ہے ہمارے پاس 2 جو ہیں وہ ثنایا علیہ ہیں اور 2 ثنایا سفلی ہیں۔ رباعی بھی ہمارے پاس 4 ہوتے ہیں، انیاب بھی 4 ہوتے ہیں۔ اب جب داڑوں کی بات کریں گے تو داڑیں جو ہمارے پاس 4 دواحق ہیں، 12 ہمارے پاس طواحن ہیں، اور 4 ہمارے پاس نواجد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گئی دانتوں کا نقشہ ہو گیا۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ زبان ہے، یہ سارے ہمارے ارد گرد والے دانت ہیں جو یہ آپ کو وائٹ کلر میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ثنایا ہیں، یہ 2 رباعی ہیں، یہ انیاب ہیں، یہ دواحق ہیں، یہ طواحن ہیں، یہ جو ہیں یہ بھی طواحن ہیں، اور یہ بھی طواحن ہیں۔ 3 ہمارے پاس 3 اوپر 3 نیچے، رائٹ سائڈ پر 3 اوپر 3 نیچے لیفٹ سائڈ پر۔ یہ ٹوٹل ان کی تعداد ہوتی ہے 12۔ 6 اوپر کے حصے میں اور 6 نیچے کے حصے میں ہوتے ہیں۔ ان کو پیسنے والے دانت کہتے ہیں، طواحن ان کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس ہوتے ہیں نواجز ہوتے ہیں، یہ جو ان کو وزڈم ٹوتھ بھی کہتے ہیں، اور یہ جو پکڑنے والے دانت ہوتے ہیں۔ یہ ساری زبان کی ڈیٹیل آ گئی ہے۔ یہ نقشہ آپ کو بعد میں بھی دکھایا جائے گا جب ہم حروف کی ادائیگی کریں گے، اس وقت بھی بتائیں گے۔ بھی ہم نے یہ پڑھے ہیں، صرف قاف اور کاف پڑھا ہے، اور حروف لہاتیہ پڑھے ہیں، اور ہم نے حروف شجریہ پڑھے ہیں، شین جیم اور یا پڑھے ہیں۔ اگلی ڈیٹیل آپ کو بتا دی جائے گی۔ یہ جو قاف اور کاف زبان کی جڑ سے نکلتے ہیں، اور شین جیم اور یا جو ہیں یہ زبان کا جو درمیان کا حصہ اوپر والے تعلق سے ٹکراتا ہے، تو یہ حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی پوئم ہے جو کہ تجوید کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ سکھاتے ہوتے ہیں۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ان کے 32 ہوتے ہیں نا دانت، کل 30 اور 2۔ ثنایا ہے 4، رباعی ہے 2 2، ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قرآ اضطراس انہی کو۔ دواحق ہیں 4، طواحن ہیں 12، نواجد بھی ہیں ان کے بازو میں 2۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کون سی زبان بولی جا رہی ہے، تو کس زبان کی یہ پوئم ہے؟ یہ دیکھنے میں تو اردو ہی لگ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے، جو یہ سب نام یوز ہوئے ہیں، وہ عربک ہیں، عربی میں ہیں۔ ان کو انگلش عربی سے جب انگلش ہم کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، the number of teeth in the human mouth is 32 and their names are as under athanaya. These are the central incisors. Front teeth 4 in total, 2 in the upper jaw and 2 in the lower jaw. The upper jaw, 2 in the upper jaw are called thanaya ulya, and the 2 in the lower jaw is called thanaya sufla. And Ar-Rubaiyat. Ar-Rubaiyat is the lateral incisors adjacent to the central incisors, and they are 4 in total. After that, there comes Al-Anyab. These are the canines adjacent to the lateral incisors and are 4 in total. After that, there comes Al-Idras. Al-Adras. Molars 20 in total and made up of, these are the molars, their total count is 20, and the first one we call is ad-dawahiq, first molars.
they are called first molars, and they are 4 in total. And the second one is at-tawahin. These are the second molars. Their count is 12 in total. And after that, there comes an-nawajid, third molars, and they are 4 in total, which are called the wisdom teeth as well. तो आपको लग रहा होगा कि ये तो अरबी से इंग्लिश या अरबी से उर्दू थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, बट आपको ये एज इट इज़ ही याद करना होगा। इसको याद करने के बहुत आसान तरीका जो है वो मैं डायग्राम आगे बनाती हूँ और दिखाती हूँ आपको। उसके हिसाब से आपने याद करनी है और एज इट इज़ ही आपको याद करने होंगे। उसकी उर्दू टर्मिनोलॉजी तो हमारे यूज़ में ही रहती है, दांत होते हैं, दाढ़ें होती हैं, अकलदाढ़ होती है, और ये सारे जो हम उर्दू में तो पता ही है। इंग्लिश में भी यूजुअली पता ही होता है, कैनाइन्स होते हैं, लेटर इंसाइजर्स होते हैं, और उसके बाद हमारे पास मोलर्स होते हैं। मोलर्स में फर्स्ट मोलर्स होती हैं, सेकंड मोलर्स होते हैं, थर्ड मोलर्स होते हैं। बट इन उर्दू और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को हमने अरबी के साथ रिलेट करके याद करना है। यही हमारा टास्क है और यही हमारा काम है, ताकि हम उसको उसी तरीके से जो है वो प्रोनाउंस करने में हमें मददगार साबित हो। आते हैं हम डायग्राम्स की तरफ। सबसे पहले हमने पढ़ा था सनाया उलिया। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था असनाया। सनाया उलिया, उलिया आला से निकला है, ऊपर वाला। सुफला नीचे से निकला है, नीचे वाला। सनाया उलिया ऊपर वाले दांत और सनाया सुफला नीचे वाले दांत। यानी कि ऊपर वाले सेंट्रल इंसाइजर्स को कहते हैं सनाया उलिया, नीचे वाले जो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं उनको कहते हैं सनाया सुफला। यहाँ पे ग्रीन कलर की आपको ये आ रहा है, ग्रीन कलर के सामने लिखा हुआ है सेंट्रल इंसाइजर्स। ठीक है, और आगे उनकी काउंट आ रही है 4। अब ये 4 कौन से हैं? ये वाले 4 हैं। ये दरमियान वाले जो दांत हैं, ऊपर वाले 2, और ये दरमियान वाले 2 दांत, नीचे वाले 2 दांत। ये सनाया उलिया है और ये सनाया सुफला है। इनकी टोटल काउंट है 4। ये इसको कहती है असनाया। ये 4 इनकी तादाद है। ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ग्रीन सेंट्रल इंसाइजर 4। ये आपको दांत की भी जो इसको ग्रीन से इंसर्कल किया हुआ है, इसको ग्रीन से इसकी बाउंड्री बनाई हुई है। ये है हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर्स। ठीक है, सनाया उलिया, सनाया सुफला, अपर सेंट्रल इंसाइजर्स, लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स। अब आ जाते हैं हम आगे लेटर इंसाइजर्स की तरफ। लेटर इंसाइजर्स रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं। ये रेड इनकी बाउंड्री बनाई गई है। दरमियान वाले 2 दांतों के साथ वाले जो दांत होते हैं इनको कहते हैं रुबाइयात, लेटरल इंसाइजर्स। ठीक है, ये भी नीचे भी ये दरमियान वाले 2 दांतों को छोड़ के जो इर्द गिर्द के इनके 2 दांत है ना, इनको कहते हैं रुबाइयात। उसके बाद आ जाते हैं हम अल अनियाब पर। अल अनियाब जो होती हैं वो हमारे पास ये पर्पल कलर में आपको कैनाइंस रहते हैं। इनको ये कैनाइंस जो है ये दरमियान वाले ये चारों दांतों को छोड़ के इनके इर्द गिर्द के 2 दांत होते हैं ना, इनको कहते हैं अल अनियाब कहते हैं, और इंग्लिश में इनको कैनाइंस कहते हैं। ये दीज आर द 4 ones, 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास कैनाइंस है, अल अनियाब इसको कहते हैं। आगे आ जाते हैं अदवाहिक। अदवाहिक ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं, फर्स्ट मोलर्स जो होते हैं। बिल्कुल, ये जो हमारे हमने ये 5 6 बल्कि ये 6 दांत जो हैं सामने वाले हमने छोड़ दिए। सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटर इंसाइजर्स, कैनाइंस, ये सब छोड़ के आगे जब ये वाले ब्लू जो जिनकी बाउंड्री बनी हुई है, ये हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट मोलर्स। ठीक है, ये नीचे भी जो ब्लू बाउंड्री जो बनी हुई है, ये हमारे पास है फर्स्ट मोलर्स। इनको अरबी में कहती हैं अदवाहिक। ये दवाहिक हैं, फर्स्ट मोलर्स। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने, हमारे पास सेकंड मोलर्स आ जाते हैं। सेकंड मोलर्स टोटल 12 होते हैं। येलो कलर में ये आपको नजर आ रहे हैं, येलो इनकी बाउंड्री बनाई गई है। ये वाले 3 और ये वाले 3, ये ऊपर के हिस्से में 6, और ये 3 और ये 3 नीचे के हिस्से में भी 6। 6 और 6 12। इनको कहते हैं सेकंड मोलर्स, और ये इनको अरबी में कहते हैं अत्तवाहिन। ठीक है, आपने इनको ऐसे याद करना है। इनकी तादाद 12 होती है, अत्तवाहिन इनको कहते हैं। इनकी तादाद टोटल 12 होती है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी थर्ड मोलर्स। थर्ड मोलर्स बिल्कुल आखिर में जो होते हैं हमारे पास, ये ऑरेंज कलर में इनको किया गया है। बिल्कुल आखिर में इनको विजडम टीथ भी कहते हैं, अकलदार भी कहते हैं। ये आखिर में जो होते हैं इनको थर्ड मोलर्स कहते हैं। अन्नवाजिद इनको अरबी में कहते हैं, अन्नवाजिद। ठीक है, ये हमारी दांतों की सारी डिटेल्स होगी, इनको आपने एज इट इज़ ही याद करना है। इनकी अरबी टर्मिनोलॉजी जो है, अरबी नेम्स जो है, इनके आपने ऐसे ही याद करने हैं। 12 दांतों की तफसील बताए देते हैं। सामने के 4 दांतों को सनाया कहते हैं, ऊपर वाले 2 को सनाया उलिया और नीचे वाले 2 दांतों को सनाया सुफला कहते हैं। सनाया के साथ एक-एक दाईं-बाईं ऊपर नीचे 4 दांतों को रुबाई कहते हैं। रुबाइयात पढ़ा था ना हमने, रुबाई की जमा जो होती है रुबाइयात। तो 4 दांतों को रुबाई कहते हैं और रुबाइयात कहते हैं, और रुबाइयात के साथ एक-एक ऊपर-नीचे दाएँ-बाएँ 4 दांतों को अन्याब कहते हैं। ठीक है? अल-अन्याब भी हमने पढ़ा था। सारे डायग्राम्स में, या आप पीछे से जाके देख सकते हैं, डायग्राम्स में सब आपको क्लियर करके बता दिया गया है। अब 20 दाढ़ों की तफसील देख लेते हैं। अन्याब के साथ एक-एक दाएँ-बाएँ ऊपर-नीचे 4 दाढ़ों को दवाहिक कहते हैं। ठीक है? दवाहिक के साथ 3-3 दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे बाएँ 12 दाढ़ों को तवाहिन कहते हैं। ठीक है? और तवाहिन के साथ बिल्कुल आखिर में एक-एक दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे 4 दाढ़ों को नवाजिद कहते हैं, जिनको अकलदाढ़ भी कहा जाता है। अच्छा, अब इन दवाहिक, तवाहिन और नवाजिद, ये जो 3 हमारे पास दाढ़ें थी, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर्स एंड थर्ड मोलर्स, ये तीनों को मिला के अल-इदरास कहते हैं। ठीक है? सारी दाढ़ों को हम टोटल ऑल टुगेदर अल-इदरास कहते हैं। अल-अदरास, नॉट इदरास, अल-अदरास। इसको अल-अदरास कहा जाता है, सारी दाढ़ों को मिला के। दवाहिक, तवाहिन, नवाजिद को मिला के अल-अदरास कहा जाता है। इनके फर्स्ट मोलर्स, सेकंड मोलर्स, थर्ड मोलर्स, इन सबको मिला के अल-अदरास कहते हैं। Okay. Details of 12 teeth. Al-Athanaya. Central incisors, front teeth, 4 in total, 2 in the upper jaw and 2 in the lower jaw. Al-Rubaiyat. Lateral incisors, adjacent to the central incisors and are 4 in total. Al-Anyab. Canines, adjacent to the lateral incisors and are 4 in total. And in the same way, Ad-Dawahik. First molars, 4 in total. At-Tawahin, second molars, 12 in total. An-Nawajid, third molars, 4 in total, which are called the wisdom teeth as well. अब यहाँ पे बताया गया al-adras, molars made up of ad-dawahik, at-tawahin and an-nawajid. यानी कि अल अदरास मोलर्स जो हैं, अल अदरास को मोलर्स कहा जाता है ऑल टुगेदर। ये मोलर्स, फर्स्ट मोलर्स, सेकंड मोलर्स, थर्ड मोलर्स को मिला के मोलर्स ही बनते हैं ये, जिनको अरबी में अल अदरास कहते हैं। और इनके फर्स्ट मोलर्स को हम कहते हैं अद-दवाहिक, और सेकंड मोलर्स को हम कहते हैं अत-तवाहिन, और थर्ड मोलर्स को कहते हैं अन-नवाजिद। ठीक है, ये हमारे दांतों के नाम हैं और इनको आपने इसी तरीके से याद करना है। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे उर्दू में, सॉरी अरबी में और इंग्लिश में सब इकट्ठा लिख दिया गया है। ये अब यहाँ से जाके तमाम दांतों के नाम याद कर लीजिए। फिर आगे जो हमारे पास जो मखारिज आएंगे, आगे हाफ़तुल लिसान आएगी और बाकी जो मखारिज आएंगे वो हमारे इन्हीं में से दांतों की के साथ ज़ुबान किन दांतों के साथ टच होती है और उनसे कौन से हरूफ निकलते हैं, तो उनके इस वजह से दांतों के नाम याद करने ज़रूरी हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।